Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Arya Wahid and you are on the channel of Medicare. So as you know, we have started about the experiments of pharmacology and we have discussed some previous experiments and previously experiment number 3 was about the preparation of thyroid solution, and we have discussed it and all the procedure we have revised it. Now we are going to start the preparation of our next solution, which is a crab Henseleit solution. It also called as a frog crab ringer solution. So you can see these two names to it. So it's just similar to the thyroid solution. So if you don't have seen the video of thyroid solution, then you have to definitely see it before you are learning about the crab solution, because I have given the mnemonics to you and I am going to revise it. So as you can see, we have a little bit same mnemonics for both of these solutions. The mnemonics of crab Henseleit solution is just similar, a little bit differences in it, but it just mnemonics are similar to the thyroid solution. So and its composition is almost same. So in the thyroid solution we have discussed the mnemonic, which is salty gliders can manage naughty gliders. So this was all of our mnemonic, and same this mnemonic is present in it. So what is crab Henseleit solution? Let's discuss its introduction. The theoretical background is given here. This crab Henseleit solution was developed by Hans Crab and Kurt Henseleit. It was balanced salt solution. You can call it a physiological solution having the property of buffer solution, mean it is going to regulate the pH. Its pH is 7.4 and it is just similar to the pH of our blood. And the normal saline means it have maintained the osmotic pressure in it. It is isotonic to our body, and every solution in which we are going to put any organ, it should be isotonic to that organ. So this crab solution is isotonic, having same atmospheric pressure as our blood has. And the culture media means it is going to provide nutrition, because it contains a lot of minerals, a lot of ions in it. So whenever we are going to put anything in it, it is going to provide the nutrition to it. So what kind of materials we are going to put in it? Actually these solutions are used for the irrigation. The word irrigation means to clean, to wash something. So it is going to wash or clean trachea, aorta, urinary bladder and arteria of various animals. You can place the arteria of a rabbit, you can place the arteria of a mouse, everything you can do. But just focus that its pH, its atmospheric pressure, its isotonicity should be equal to that organ. So what kind of apparatus we need to prepare this solution? So we need a beaker, we need a weighing balance, volumetric flask, water and the stick. Some chemicals we also need, but the chemicals are just same as the thyroid solution. We need NaCl. Okay, so we have revised all the chemicals with the mnemonic. So the same mnemonic is in sorry, is in the crab Henseleit solution. So we need NaCl, salty, guards से हमने mnemonic बनाया था KCl, we need KCl in it. Guards can C से CaCl2 we need it. Manage M से MgCl2 we need this ion in the crab Henseleit solution. Can manage नोटी से दो हमारे पास चीज़ें बन रही थी, एक बन रहा था NaHCO3 और दूसरा हमारे पास बन रहा था Na2PO4 in the case of thyroid solution. But now Na is single. In the case of crab Henseleit, only NaHCO3 is given. Then next word is the gliders. So gliders से ग्लूकोज बनता था हमारे पास, और लास्टली इसके अंदर एक और मिनरल आ जाता है वो जो कि हमारे पास है H2PO4. ठीक है, H2PO4. सो आप उसको याद रखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं. तो हम इसकी कैलकुलेशंस पहले कर लेते हैं.
हमें यहाँ पर NaCl चाहिए। NaCl एक तो हमें दिया होता है इन्होंने स्टैंडर्ड, ठीक है, जिससे हमने स्टैंडर्ड पिछले सोल्यूशन में भी देखा था। सो अब वो स्टैंडर्ड था थायराइड सोल्यूशन के लिए। अब जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी जाएंगी या स्टैंडर्ड मोलर कंसंट्रेशन आपको दी जाएंगी इन सब आइंस का, वो इनके लिए स्पेसिफिक होगा, वो क्रेब्स सोल्यूशन के लिए स्पेसिफिक होगा। सो अब आपने इसके लिए मोलर कंसंट्रेशन अलग, जैसे NaCl है उसके मोल्स आपको कितने चाहिए, 118 मिलीमोल्स जो है वो चाहिए क्रैब हैंसलेट के लिए। बट जब हम बात कर रहे थे कि NaCl थायराइड सोल्यूशन में कितना चाहिए, तो वो 136.6 मिलीमोल्स आपको वहाँ पर चाहिए था, तो डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इनको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, एक निमोनिक है जिससे आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि एक नैन्सी एक लड़की है और उसकी बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है। ये मैं निमोनिक्स बना रही हूँ ताकि आप ये मोलर जो कंसंट्रेशंस यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं ये आपको कहीं नहीं दी होंगी, ये आपने खुद याद रखनी है। सो नानसी एक लड़की है जिसकी एक बर्थडे पार्टी है और उसकी बर्थडे पार्टी के अंदर गेस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और NaCl के मोल्स जो हैं वो 118 है। सो 118 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नानसी के गेस्ट कितने आए हैं उसकी बर्थडे पार्टी में, ठीक है। सो N से वो नानसी और नानसी के गेस्ट कितने आए हैं 118, इट्स मीन NaCl के कितने मोल्स चाहिए 118.2। अगर आप नहीं भी लिखते तो इतना बड़ा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है KCl। KCl से आप क्या बनाएंगे कि उसने प्रिपेयर्ड किए हैं कुकीज़, K से कुकीज़ जो है वो वर्ड K से कुकीज़ जो है वो सिमिलर बनता है इससे। तो कुकीज़ उसने नानसी ने अपने 118 गेस्ट के लिए बनाई हैं कुकीज़, और कितनी कुकीज़ बनाई हैं 4.7 मीन 4 कुकीज़ जो है बनाई हैं। गेस्ट इतने सारे हैं 118 गेस्ट हैं और उसने कुकीज़ सिर्फ 4 बनाई हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि नैन्सी इसमीन बहुत ज़्यादा कंजूस लड़की है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है CaCl2। सो कैल्शियम एक उसका कोई भी दोस्त आप कह सकते हैं। कैल्शियम के लिए जो उसने कुकीज़ बनाई हैं वो 2.5 बनाई है, यानी 4.7 में से 2.5 कुकीज़ उसने कैल्शियम के लिए बनाई हैं। और फिर उसके बाद हम MgSO4 पे आ जाते हैं। MgSO4 यानी मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम भी उस नानसी का एक दोस्त है और उसके लिए उसने कितनी कुकीज़ बनाई है 1.2। इट्स मीन उसका ज़्यादा गहरा दोस्त कौन सा था, कैल्शियम था, जिसके लिए उसने 2.5 कुकीज़ बनाई थी। मैग्नीशियम के लिए उसने फिर कंजूसी का इजहार किया है और 1.2 कुकीज़ यानी सिर्फ एक ही कुकी मैग्नीशियम के लिए उसने बनाई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजूस किस्म की लड़की जो है वो नानसी साबित हो रही है अब तक के लिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, तो NaCO3 आ जाता है ये। अब क्योंकि कुकीज़ सॉलिड थिंग है, अब उसने कोई ड्रिंक भी अपने गेस्ट के सामने रखना था और ड्रिंक में उसने क्या रखा NaCO3, जो कि हमारे पास क्या है सोडा वाटर हम इसको कहते हैं। तो उसने सोडा वाटर बना के लाई, क्योंकि अब कुकीज़ कम थे तो जाहिर बात है उसने अपने 118 गेस्ट को किसी न किसी तरह तो उनको कुछ ना कुछ देना था खाने के लिए। तो उसने सोडा बनाया और सोडा के कितने ग्लास उसने बनाए, सोडा के ग्लास उसने बनाए 25, ठीक है। ये 2.5 नहीं है, ये 25 है। तो 118 गेस्ट के लिए 25 गिलास सोडा बनाए हैं। अभी भी उसने कंजूसी थोड़ी बहुत तो की है, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा सोडा के गिलास जो है वो बनाए हैं, क्योंकि सोडा सस्ता मिलता है इसलिए उसने 25 गिलास बना दिए हैं। और कुकीज़ तो उसने बहुत ही ज़्यादा कम बनाए थे और अपने सिर्फ ख़ास दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही दिया कुकीज़, बाकियों को भूखा रखा उसने और सिर्फ सोडा गिलास से टरकाया। और फिर उसने, अब उसको शर्म आती जा रही है और वो कह रही है कि मैंने अपने गेस्ट के आगे कुछ नहीं रखा। तो फिर उसने स्वीट डिश लाई ग्लूकोज के नाम से, स्वीट डिश आई। और स्वीट डिश कितनी उसने बनाई 11 स्वीट डिश उसने बनाई। जाहिर बात है 118 गेस्ट है, 25 को तो चलो ठीक है सोडा मिल गया, 4 को जो है वो कुकीज़ मिल गई, बट फिर भी उसने कहा कि मैं कोई एक स्वीट डिश बनाती हूँ और उसने स्वीट डिश बनाई 11.7 यानी 11 स्वीट डिशेस उसने बनाई। और अगेन फिर उसने कुकीज़ बनाई और अब उसने किसके लिए ये K2PO4 जो है ये नया जो सब्सटेंस हमारे पास ऐड हुआ है इसके लिए कुकी बनी 1.3
मिलीमोल्स, ठीक है। यानी एक और बस उसने कुकी बनाई है, यानी कुकीज़ में नांसी ने कंजूसी की हद पार कर दी है। सो ये जस्ट एक फ़नी निमोनिक्स था आप लोगों को जस्ट रिवाइज़ करवाने के लिए। एक तो निमोनिक्स ये था जो मैंने अभी आपको बताया, एक और भी निमोनिक्स है, उसका ये है कि नांसी, ठीक है, एन से नांसी, काइंडली, के से काइंडली, कुक, सी से कुक्ड, एम से मैनी, ठीक है, मैग्नीशियम से एम से मैनी, नाइस, नाइस से NaHCO3, नाइस, ग्रीन, ग्रीन से जी से ग्लूकोज, ग्रीन, और कुकीज़ से K2H2O4, ठीक है। तो उसने जो नांसी है उसने काइंडली कुक किया बहुत सारी नाइस ग्रीन कलर की कुकीज़, लेकिन हमें पता है कि नांसी ने कितनी कंजूसी की है कुकीज़ बनाने में, बट हम लोग गेस्ट के सामने वो इस तरह से शो करिए कि उसने बहुत अच्छी ग्रीन कलर की कुकीज़ बनाई है, ठीक है। सो उसमें क्या कहेंगे कि नांसी की बर्थडे पार्टी में कितने गेस्ट आए थे, 118। अच्छा, काइंडली उसने कितने, यहाँ पर काइंडली से जो मैंने निमोनिक्स बनाया था वो बनाया था कि 4.7 बालून्स हैं उसकी बर्थडे में, ठीक है। के से काइंडली जब आता है तो उसके 4.7 बालून्स लगे हुए थे उसकी बर्थडे पार्टी में। CA से क्या आएगा कि उसको कितने कुकड गिफ्ट मिले, और 2.5 गिफ्ट उसे मिले। अच्छा, उसके बाद मैनी से 1.2 मैनी 1.2 कपकेक्स उसके लिए जो है डिफरेंट किस्म के गेस्ट लाए थे। नाइस, एन से ये नाइस, और यानी 2.5 टेबल्स, सॉरी दिस इज़ नॉट 2.5, दिस इज़ 25 टेबल्स उसके लिए लगाई गई थी। ग्रीन, ग्रीन से 11 जो है वो आपके ग्रीन कलर के केक्स बेक किए गए थे उसके लिए, और कुकीज़ कितनी थी, 1.3, ठीक है। तो ये दो निमोनिक्स है जो, लेकिन मुझे ज़्यादा बेस्ट जो है वो पहले वाला लगा था। वो क्या है निमोनिक्स कि नांसी की बर्थडे पार्टी है और उसकी बर्थडे पार्टी के अंदर कितने गेस्ट आए हैं, 118। इट्स मीन NaCl के कितने मोस्ट आए हैं, 118, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है क्या, के से क्या आ जाता है कि उसने बनाई उनके लिए कुकीज़, और कितनी कुकीज़ बनाई अब आप लोगों को पता है कि 118 गेस्ट हैं, बट उसने बहुत ज़्यादा कंजूसी की और सिर्फ 4.7 यानी सिर्फ 4 कुकीज़ उसने बनाई 118 गेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद CaCl2 उसके लिए हमने क्या बनाया था कि उसने कैल्शियम, अपने दोस्त कैल्शियम के लिए उसने कितनी कुकीज़ रखी, 2.5 रखी। अगला उसका दोस्त मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के लिए उसने 1.2 कुकीज़ बनाई। अब उसको क्योंकि शर्म आ रही है कि उसने बहुत कम कुकीज़ बनाई हैं, तो फिर उसके बाद उसने उनके लिए क्या बनाया, सोडा वाटर ड्रिंक से काम चलाया, और 25 ग्लास सोडा वाटर के वो बना के आई। इस मीन NaHCO3 के कितने मिलीमोल्स चाहिए, 25 मिलीमोल्स चाहिए, वेरी गुड। उसके बाद हमने उसने क्या दिया, अपने गेस्टों को स्वीट डिश से खाया। हमने बताया कि उसने मीठा चूना लगाया उनको, और कितना स्वीट डिश बनाई उसने, 11 मुख्तलिफ स्वीट डिशेस बनाई अपने 118 गेस्ट के लिए। और उसके बाद उसने उनको एक और कुकी बनाई अपने एक स्पेसिफिक दोस्त के लिए, 1.3 थी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब जब आपको ये मोल्स याद हो गया कि कितनी मोल्स ये चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना आई थिंक कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, और फिर उसको जस्ट डिवाइड कर देना है अपने 1000 से, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये जो ग्राम आया है, ये जो ग्राम आया है NaCl का, ये है 1000 ग्राम सोल्यूशन के लिए, बट आपने सोल्यूशन कितना बनाना है, 100 ml। सो अब आप लोग इसको क्या करेंगे, इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो जब जो आंसर आएगा वो इट्स मीन कि आपने इतने ग्राम NaCl डालने होंगे 100 ml सोल्यूशन बनाने के लिए। इसी तरह अगर आपको क्या कहता है 200 ml के लिए बनाना है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे आप जितना भी वो कहें, लाइक 200 अगर उन्होंने कहा तो 200 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। सो अब हमने अपने कैलकुलेशंस कर ली, निमोनिक्स देख लिया, अब आपके लिए बाकी चीज़ें देखना ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आगे वाली चीज़ें बहुत ही आसान है। अच्छा बच्चों, से ये यहाँ पर मैंने वो सारे केमिकल्स लिख दिए और उनके जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर्स आए थे वो भी मैंने इधर लिख लिए थे। अब मैं आपके सामने ये चीज़ नहीं कर सकती दोबारा, तो आप लोग खुद इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे लाजमी लिखेंगे,
ठीक है। और इस तरह की पिक्चर भी आपने ज़रूर अटैच करनी है। हो सके तो खुद ड्रॉ कर लें या पिक्चर अटैच कर सकते हैं तो वो कर लें। लेबल लाजमी लगा हुआ हो जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये मैंने क्रैब पेंसिल सोल्यूशन बनाया था 100 ml का और वो मैंने अटैच भी किया है। आप लोग भी इसका जो डायग्राम है बनाना चाहते हैं वो बना लें या पिक्चर अटैच करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रोसीजर बहुत बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे टायराइड सोल्यूशन का था। ठीक है, क्या करना है, टेक अ बीकर करना है, उनको वॉश और ड्राई कर ले, बे करें अपने सारे केमिकल्स, टेक ऑल द केमिकल एक्सेप्ट द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड जैसे हमने पहले किया था। सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड को अलग डिज़ोल्व करें क्योंकि ये टर्बिडिटी करते हैं। टर्बिडिटी क्यों करते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिलती है इनके दरमियान जो ऐसा रिएक्शन होता है कि ये बना देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो CaCO3 है वो क्वाइट हार्ड किस्म का होता है और वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होता। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज़ वाटर के अंदर सोलेबल नहीं है तो वो नीचे बैठ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। सो जब आपको सोल्यूशन के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे तो वो सोल्यूशन ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमें क्योंकि चाहिए एक क्लियर फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन। सो अब क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से तो हमारा सोल्यूशन क्लियर नहीं रहेगा और इस वजह से फिर हम इनको अलग से डिज़ोल्व करते हैं। फिर हमने इन दोनों बीकर्स को आपस में मिलाना होता है ग्रेजुअली। सो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड बोथ सॉल्यूशंस टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और ग्रेजुअली ऐड करना है, बहुत स्लोली आपने ऐड करना है और स्टिर करते जाना है, ऐड करना है और स्टिर करते जाना है। जब आप इस तरह से ऐड करते हैं ना तो उसके अंदर कोई भी पिपिटी नहीं बनेगा। मेक द टोटल वॉल्यूम अप टू 100 ml। ठीक है, 100 ml तक पूरा वॉल्यूम आपने कर देना है और उसके बाद लेवल करके आप अपना सोल्यूशन रख देंगे और फिर आपने जब वाइवा होगा या आपका जो परफॉर्मेंस होगी आपके पेपर्स के दौरान तो वो आपने अपने प्रोफेसर को चेक करवाना है। ठीक है, यूजेस की बात करते हैं। अगर आप बिल्कुल इस तरह का प्रैक्टिकल अपने लिख के आएंगे पेपर्स के अंदर तो आपके कभी भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट लेंगे वीडियो से तो वाइवा में भी जब भी आपसे वो पूछेंगे तो आपको कभी भी इसमें कोई और चीज़ रहेगी नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। यूसेस की बात करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जाहिर बात है कि रिसर्च में ही हम लोग रैबिट के आइसोलेटेड ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और फिर हम उनको इस सोल्यूशन में पुट करते हैं। सो इट इज़ यूज व्हेन लो बाइकार्बोनेट और पोटाशियम इंग्रेडिएंट। सो इनमें जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है और जो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। सो अब ऐसा कोई ऑर्गन है आपके पास जिसको बाइकार्बोनेट और पोटाशियम कम चाहिए, सो उसके लिए हम क्रैब हेंसलर सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोलॉन्ग द विस्कोसिटी ऑफ द टिश्यू। ठीक है, यूज टू माउंट द आइसोलेटेड ऑर्गन्स लाइक ट्रैकिया, एओर्टा, इलियम ऑफ द रैट, ब्लैडर, आर्टरिया ऑफ रैबिट, रैट, गुआनी, पिग। किसी भी ऑर्गन या किसी भी एनिमल का आपने एओर्टा, इलियम, ब्लैडर, ट्रैकिया, आर्टरिया जिस चीज़ से भी आपने स्टडी करना है आप कर सकते हैं इस सोल्यूशन की वजह से। प्रिकॉशन बहुत इजी सी हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका ऑपरेटर्स नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो आपने वे करने हैं सारे केमिकल्स उनको एक्यूरेटली वे करें। मेक श्योर करें कि आपका वेइंग बैलेंस जो है वो ठीक और एक्यूरेट मेजर करें टू अवॉइड द टर्बिडिटी। वही चीज़ आ गई, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड को अलग से बनाएं और फिर उनको ग्रेजुअली ऐड करें। एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम केयरफुली, एरिएटेड विद द कार्बोजन। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है लास्ट लाइन का, आई थिंक कि अगर आपने मेरी ऑर्गन बाथ वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। ऑर्गन बाथ में हमने देखा था कि हमें एक टिश्यू को जब हम रखते हैं तो उसको हमने ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी होती है, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करनी होती है, उसको हमने टेम्परेचर भी देना होता है। सो जब आप इसी टिश्यू को रखेंगे क्रैब हेंसलर सोल्यूशन के अंदर और इन ऑर्गन बाथ के अंदर जो है आप रखेंगे तब आपने उसको इन टिश्यूज़ को कार्बोजन की वजह के ज़रिए से आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। और कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है? 95% ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड आप 5% प्रोवाइड करेंगे और टेम्परेचर आप 37 रखेंगे तो आप इजीली टिश्यू के ऊपर स्टडी कर सकेंगे। ये टिश्यू ज़िंदा रहेगा आपके होल एक्सपेरिमेंट तक। क्योंकि अगर आप एक टिश्यू को इस सोल्यूशन के बाहर ऐसे ही रख देंगे, लाइक मैंने ये ऑर्गन निकाला और मैंने इसे यहाँ पर ऐसे ही रख दिया, ठीक है, तो ये टिश्यू ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा जैसे एक जानवर मर जाता है।
सो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदा रहे, तो उसके लिए मैं उसको ऑर्गन बाथ में रखूँगी। और ऑर्गन बाथ के अंदर मैं कौन सा सोल्यूशन डालूँगी, क्रैब हैंसलर सोल्यूशन डालूँगी, क्योंकि वो उस ऑर्गन की नीड है। अगर उस ऑर्गन को टायराइड सोल्यूशन की नीड है तो मैं टायराइड सोल्यूशन डालूँगी। सो यहाँ पर होती है जी हमारी ये वीडियो एंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। एक दफ़ा फिर हम लोग उसके निमोनिक से याद कर लेते हैं। सो नैन्सी की बर्थडे पार्टी में कितने गेस्ट आए थे, 118। सो यानी NaCl के कितने मोल्स चाहिए होंगे, 118 मिली मोल्स चाहिए होंगे। उसके बाद KCl यानी उसने कुकीज़ कितनी बनाई थी, हमारे पास 4.7 कुकीज़ बनाई थी। कितनी कुकीज़ उसके लिए, so sorry, the light is gone, so just we are revising it, so just revise it with me. So कितनी कुकीज़ उसने बनाई थी, 4.7 कुकीज़ बनाई थी। मैग्नीशियम के लिए कितनी बनाई थी, 1.2। कैल्शियम के लिए उसने कितनी बनाई थी, 2.5 कुकीज़ बनाई थी। देन उसके बाद उसने सोडा ग्लासेस बनाए, 25 ग्लासेस सोडा के बनाए उसने अपने 118 गेस्ट के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, स्वीट डिश बनाई और 11 स्वीट डिशेस उसने बनाई अपने गेस्ट के लिए। और उसके बाद उसने एक और कुकी बनाई, 1.3 कुकी जो है वो बनाई अपने एक फ्रेंड के लिए। सो यहाँ पर हम जो है क्रैब हैंसलर सोल्यूशन और टायराइड सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन जो है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया सोल्यूशन पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।